Assalamu alaikum everyone. Welcome to CMA Chronicles. Hope you are all doing great. As you all know that this channel is basically created for CMA students, and we are discussing its first subject, that is FFA, Fundamentals of Financial Accounting, and it's the first subject of operational level 1. So after its first chapter we will jump to its second subject, that is business economics, and then business communication and report writing. But first, let's complete its first chapter. So, as you all know that in the last video we have discussed accounting principles, its basis, and its concepts, conventions. We already discussed its elements, its definition, its branches. So now today's topic is debit and credit, and it's the most important topic in accounting. You have to prepare financial statements in your career, so in your paper also. So for that you have to know that which entries, which entry has an effect on which account. जो एंट्री है वो हमारे पास एसेट्स को अफेक्ट करेगी, लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेगी, इक्विटी को अफेक्ट. As we already discussed, dual aspect of accounting, like के हर जो ट्रांजेक्शन है उसके वो अफेक्ट करेगी दो अकाउंट्स पे. कोई से भी दो अकाउंट पे वो क्या करेगी, एंट्री ऑपोजिट साइड में अफेक्ट करेगी. अगर एक एंट्री को वो डेबिट करेगी तो दूसरे अकाउंट को वो क्या करेगी, वो एंट्री क्रेडिट करेगी. सो वही कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग में हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि कौन सी एंट्री डेबिट हो रही है और कौन सी एंट्री हमारे पास क्रेडिट हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट. इसके लिए सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट पे ग्रिप होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास डेबिट एंट्री होती कौन सी है और हमारे पास जो क्रेडिट एंट्री है वो कौन सी होगी. सो टुडेज टॉपिक इज़ डेबिट एंड क्रेडिट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. It's first I have mentioned its definition. Debit is an entry on the left side of an account. Like in the general journal, we have to make ledger, then trial balance, and from these journals we have to make financial statements, like statements of profit and loss, balance sheet, cash flow statement. So these statements are made from these like ledger and trial balance. So we will make it later, but now debit and credit is the most important concept. So let's discuss. Debit is an entry on the left side of an account. So in journal, like we have, it's not particular definition. There is no particular definition of debit. So according to books, like according to accounting books, it's that the entry that is on the left side of an account, like the entry which exists on the side of an account, we called it debit. And now let's see which accounts it affect. So it represents इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ और इक्विटी. लाइक ये हमारे पास क्या करेगी, अगर तो हमारे पास इंक्रीज आ रहा है एसेट्स में तो वो हमारे पास एंट्री क्या होगी, डेबिट. अगर हमारे पास डिक्रीज आ रहा है लाइबिलिटीज़ में और इक्विटी में तो वो हमारे पास क्या आएगी, क्रेडिट. सो एसेट्स और एक्सपेंस अगर हमारे पास इंक्रीज में आ रहे हैं तो देन वी कॉल्ड इट अ डेबिट एंट्री. आगे हम जाके देखेंगे ना कि क्या रूल्स हैं कि कौन कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी. अगर क्या इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, क्या डिक्रीज करेगा डेबिट होगा. सो इट represent increase in assets or decrease in liabilities or equity. Now next concept is credit. So credit is an entry on the right side of an account. It's opposite to each other. They are opposite to each other. Like left side हमारे पास है तो वो डेबिट है, राइट साइड है हमारे पास तो वो क्या है, क्रेडिट है. और क्रेडिट ऑपोजिट है डेबिट के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को और डिक्रीज इन एसेट्स में. अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं एसेट तो वो क्या है, क्रेडिट है. और अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है एसेट
तो वो हमारे पास क्या है, डेबिट है। और इसी तरह अगर हमारे पास डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ है तो देन इट्स कॉल्ड एज डेबिट एंट्री। एंड अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही हैं तो वो हमारे पास क्या है, क्रेडिट है। अगर आप लोग को एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप लोग जाकर मेरी पिछली वीडियोस देखें। एंड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट यू मस्ट नो व्हाट इज़ एन एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, income and expense. These are the 5 basic elements of an accounting. Like accounting जो है वो बेस ही इन्हीं 5 पे कर रही है। सो अगर ये 5 आप लोग की ग्रिप में हैं तो आप डेबिट और क्रेडिट को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। और डेबिट और क्रेडिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आगे इन्हीं से हमने जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। So and from the information concluded from trial balance we'll make financial statements. So ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डेबिट का और क्रेडिट का। नाउ हम अभी डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग में। अब हमारे पास मेंशन है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, एक्चुअली कौन कौन सी एंट्री को कैसे अफेक्ट करेंगे। सो हमारे पास सिंपल यही है कि हमने पीछे क्या डिस्कस किया, डेबिट और क्रेडिट आपस में ऑपोजिट हैं। अगर डेबिट हमारे पास इंक्रीज इन एसेट है तो क्रेडिट हमारे पास डिक्रीज इन एसेट है। डेबिट हमारे पास अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सो वही हमने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिख दिया है कि आसानी से समझ आ सके। पहले हमारे पास है एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स और एक्सपेंस हमारे पास जब इंक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। और अगर डिक्रीज होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्योंकि एसेट्स हमारे पास इंक्रीज करते हैं, हमारी वर्थ इंक्रीज करेगी। हमारे पास क्या होगा कि एसेट इंक्रीज करने से हमारे पास ज़्यादातर बिजनेसेस होंगे, हमारी इनकम, हमारी मॉनेटरी वर्थ इंक्रीज करेगी। सो वो हमारे पास क्या होगा, डेबिट। और यही है कि एसेट का डिक्रीज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा और वो हमारे पास कौन सी एंट्री कहलाएगी, दैट इज़ क्रेडिट। सिमिलर गोज फॉर लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे पास क्रेडिट होंगे क्योंकि वो हमारे अकाउंट्स पेएबल्स होंगे। लाइबिलिटी हमने पे करनी है, वो हमारे पास क्या है, एक हमारी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है जो हमने अदा करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल ये अगर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होंगे, क्रेडिट। और ये डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स हैं बेसिक अकाउंटिंग के। लाइक अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो वो डेबिट है, अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है, क्रेडिट है। और एसेट एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेंगे तो वो क्या है, क्रेडिट है। और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर डिक्रीज करेंगे तो वो क्या है, डेबिट हैं। सो एक एंट्री हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो अब हमारे पास ये मेंशन है कि सैलरी पेड ₹50,000 इन कैश। सैलरी पेड ₹50,000 इन कैश। अगर यहाँ से आप लोग देखें तो सैलरी हमारे पास क्या है, एक एक्सपेंस है, कैश हमारा क्या है, एक एसेट है। सैलरी पेड, सैलरी हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये इसकी डेबिट एंट्री ऐसे आएगी कि सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारे पास क्या है, हमारा डेबिट एंट्री में आएगा। ये 50,000 का डेबिट हो गया। और कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट है। और हम आगे जाके देखेंगे ना कि जनरल जर्नल में कैसे हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सो ये ऐसे होता है कि जो डेबिट वाली एंट्री होती है वो हम पहले लिखते हैं, क्रेडिट वाली एंट्री हम बाद में लिखते हैं। और थोड़ा सा डेबिट वाली एंट्री लिख के और थोड़ा सा आगे हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट वाली एंट्री। और कैश हमारा एसेट है, ये इधर आ गया कैश। और ये हमारे पास 50,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ये।
तो ये हमारे पास एक एंट्री थी डेबिट की और क्रेडिट के रूल के मुतालिक। हमारे पास क्या था, सैलरी पेड ₹50,000 इन कैश। सैलरी हमने पे करनी है और हमने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दी और कैश हमारे पास कितना था, 50,000 का सैलरी एक्सपेंस हमने पे किया है और वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ एक्सपेंस। 50,000 डेबिट हो गया और कैश हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया यहाँ पर और कैश हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट। क्यों हुआ, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। सो अगर दूसरी हम एग्जांपल देखें तो कमीशन इनकम ऑफ commission income of 100,000 via check। कमीशन इनकम वाया चेक हमारे पास ऑफ 100,000 रिसीव हुआ है, ठीक है। कमीशन इनकम ऑफ 100,000 वाया चेक हमारे पास क्या हुआ, रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास 100,000 बैंक अकाउंट में हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। हमारे पास जो हमारा एसेट है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एंट्री चेक के ज़रिए हमारे पास पेमेंट हुई है। तो हमारे पास बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 100,000 से। और कमीशन इनकम हमारी क्या हुई, रिसीव होगी, कम होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये थोड़ी एंट्री आगे करके हम लिख देते हैं यहाँ पर 100,000 और कमीशन इनकम हम ऐसे एंट्री कर देते हैं इसकी, क्रेडिट में ये क्या आ जाएगा, 100,000। सो ये थी हमारे पास दूसरी एंट्री, ये। तो कमीशन इन बैंक अकाउंट में हमारे पास एसेट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो उसको हमने कर दिया डेबिट। और कमीशन इनकम हमारे पास क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, तो इसको हमने कर दिया क्रेडिट। क्योंकि अगर इंक्रीज़ होती तो हमारे पास क्या होता, डेबिट होती कमीशन इनकम, और अगर हमारे पास बैंक अकाउंट डिक्रीज़ होता तो हमारे पास ये क्या होता, क्रेडिट होता। So hope you like the video and you understood the concept of debit and credit. If you have any query, then do comment, and if you like the video, then like it, share, subscribe it, and do follow for more accounting related lectures. Thank you.